বিরুদা দেখবে আমার ক্যামেরা আছে। দাঁড়ান 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 দাঁড়ান, এদিকে চলে যান, চলে যান। Left, left, left. Take the left. Take the left. Lovely. দাদা দাদা দেখুন আমরা আছি তো। बस সত্যজিৎ পিছনে চলে যাও। कैमरामैन अपना चले जाए। बार यहाँ पर आप लोग खड़े होइए यहाँ पे। सर বিরুদা করবে উঠবো। सर this side Sorry. Excuse me. और one at this position ये side মৃদুদা प्लीज आप ये बैकग्राउंड पीछे एक बार क्लियर करेंगे স্যার মোবাইলগুলো একটু তুমি ওপর থেকে তুলে নাও, কিছু করার নেই। ওইভাবে আসে না। খালি করে দিন এদিকটা খালি করে দিন গুরু ব্যাকে চলে আসবেন। বাকি আছে এখানে এটা থেকে এই জায়গাটা দেখো ये आगे से क्या हो रहा है? यार प्लीज आप सब लोग एक बार पीछे তো দেখছেন তো, একটু পিছিয়ে যান, একটু পিছিয়ে যান, একটু পিছিয়ে পিছন থেকে। yes yes সকলকেই একটু প্রত্যেকেই পেছিয়ে আসুন, অনেক বড় গ্রুপ আছে, পেছিয়ে যেতে হবে। গ্রুপ কিন্তু আসবে না, অনেকটা পিছনে। हेलो सर, आप लोग थोड़ा पीछे जाइए उधर। আরে पीछे सर बोले দেখা যাচ্ছে না কাউকে। यार क्यों आस रहेगा? না ওই জড়ো হয়ে থাকবে, ও যা আসছে না। একটু ক্যামেরার দিকে। हेलो सर, आप लोग थोड़ा पीछे जाइए ना, पीछे बहुत जगह है, আরো পেছাতে হবে। पूरा पीछे जाइए। জিনিসটাই গার্ড হয়ে যাচ্ছে।
বলছি ওই ব্যাসটা একটু গার্ড হচ্ছে স্যার, হাত তুলবেন না। ব্যাসটা গার্ড হচ্ছে আর কিছু না। ব্যাস ওকে 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 ডান। বাকি যে আসছে এদিকে একটু দাদা আপনার ফোনটা নিয়ে ব্যাকে আসুন তো। Students, you go. Students, go. Please go without the camera. Please go. You have taken enough pictures. Go. Shagata, you should also come. Hey, you should also. Why not? Shall I take it with me? पीछे 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 তারপরে যাবে তারপরে যাবে তারপরে যাবে তারপরে যাবে তারপরে যাবে। Please go inside the hall. Don't stand here. Please go inside. বিরুদ্ধা তুমি সামনে চলে Please rise. The chancellor is here with the flame. Please rise. So it's a very proud moment for all of us at the Sister Nivedita University. The victory flame lit by the Honorable Prime Minister in New Delhi at the National War Memorial. We call it the unwavering victory flame. From the eternal flame at the National War Memorial has travelled around the country, the various battlefields of the 1971 war, and the villages of the martyred awardees of the Paramveer Chakra and the Mahavir Chakra, and have travelled finally to Kolkata. And this is the only educational campus that the flame has been brought to. This is the Swarnim Vijay Varsh, the journey which started on 16 January 16 December 2020. We have a year-long celebration till 16 December 2021. And we are proud and privileged that the Indian Armed Forces, the tri-services, the three pillars of national security, devotion, courage and valor is at the Sister Nivedita University with the unwavering victory flame. Honorable Chancellor Sir, Shobham Roy Chaudhary, in the presence of Honorable Vice Chancellor. Sir, please. Take the seat, please. Sir, please sit down, please. We're going to start our very important and historical event today. On behalf of our Honorable Chancellor and the Sister Nivedita University and Techno India
group, we welcome all of you who are here and also who are watching this whole program in the social media. You know that our Honorable Prime Minister lit up this Swarnim Vijay Mashal to begin the 50th anniversary celebration of 1971 India-Pakistan War. And he also paid tribute to the fallen soldiers at National War Memorial and unveiled the logo for Swarnim Vijay Varsh. The 4 victory mashals, the eternal flames, are traveling from 16th December 2020 to different parts of the country, and we are indeed really very, very grateful that they have identified the only university in Kolkata, Sister Nivedita University, where they are going to bring this particular mashal. And from all of us, a great thanks to the Eastern Command. I really welcome Colonel Nugam, Colonel Tushar, Major Sanjeev, Captain Gaurav, Captain Kabir, who is also not with us but is started the discussions regarding this, along with all the members of the team, the personalities who are actually played the band, all the faculty members, and the privileged students who could actually be present over here, because most of the students could not come. And with this, I welcome all of you in today's event. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Honorable Vice Chancellor, sir, thanks very much for a brief introduction to this. We shall move on with the function. Before we hand over the proceedings to the contingent from the armed forces to talk to us, may I request Chancellor, sir, Mr. Shulpan Roy Chaudhary, for his brief address, please. A very good morning to you all. Colonel A.C. Nagan, Major Gaurav, our Honorable Vice Chancellor, officials from Eastern Command, my colleagues, and my beloved students and dear guests. It gives me immense pride and joy to be amongst all the delegates present here. We are extremely proud that we are paying respect to this symbol of victory and national pride here at our Sister Nivedita University. The year 2021 is special, very special, because it marks the beginning of the 50th anniversary of the landmark victory in 1971. Lieutenant General Niazi, GOC-INC, East Pakistan Army, signed the instrument of surrender on 16th December 1971 with our Lieutenant General J.S. Arora, GOC-INC, Eastern Command, at the Dhaka race course, which led more than 93,000 Pakistani soldiers laying down their arms and surrender. That paved the way for political freedom of about 75 million Bengali living then in what has become Bangladesh.
history that our brave soldiers created on this day will be embossed in golden letters. Each year on this day, we proudly observe Vijay Diwas to salute the brave warriors who gave their all in the line of duty at the altar of their motherland. Celebrating the 50th year of this landmark victory is extra special. The victory flame, which all of us see today, was lit on 16th December 2020 by the Honorable Prime Minister from the Eternal Flame of National War Memorial in New Delhi. It was a prelude of the Swarnim Vijay Diwas celebration. The flame has subsequently been carried to various parts of India, including the native villages of Parambir Chakra and Mahavir Chakra awardees of the historic war. On 19th March 2021, the victory flame was brought to Vijay Sharak at Fort William and was formally received by our Honorable Governor on 10th of March. It is a matter of great honor that Sister Nivedita University becomes the only educational campus in Bengal where the flame has prevailed. I convey my sincere thanks to the officials of Eastern Command for giving us this opportunity. Thank you, sir. It is my humble pleasure to get associated with a few more programs lined up in the Swarnim Vijay Diwas. I wish you all Jai Hind. Thank you, Chancellor, sir. Before I hand over the proceedings to the Indian Armed Forces, as you know that we have representatives from all the three fighting arms of the country, the Indian Army, the Navy and the Air Force. They have brought the flame in unison to this beautiful campus. In fact, the 1971 war was the first war effectively where all the three arms fought together to bring this huge victory, this stellar victory, and paved the way for the creation of the independent state of Bangladesh. In fact, it was not just a military victory. It was a saga of indomitable courage and spirit of the Indian Armed Forces. It was a people's victory. As you know, in Bangladesh, ordinary people, part of the Mukti Bahini, they took up arms, trained for months together by the Indian Armed Forces to constitute what was called the Mitra Bahini, the Mukti Bahini and the Indian Armed Forces together, the Mitra Bahini, the Bahini of friendship. So that was called the Mitra Bahini. And when Honorable Sir said that Abdullah Niazi surrendered under the hawk eye of General Jagjit Singh Arora, the Chief of Staff, General J.F.R. Jacob, the Bangladesh Air Force Chief, Air Marshal Kandkar, and a host of other very, very eminent members of the Indian Armed Forces. In fact, that surrender has gone down in history as the biggest surrender since the Second World War. And it changed, it was not just a military victory, it changed the history, the geography, the socio-economic atmosphere of the entire South Asia with the creation of an independent state of Bangladesh, our neighbor and truly one of our dear friends. So, Sir said that we want to participate in more of Vijay Diwas programs. In fact, talks are underway and it is almost finalized that on the 7th of April, we shall organize a celebration of Vijay Diwas along with the 33 Corps of the Indian Army, who are based out of Sukna at our Siliguri campus, where we organize the Medharatna Utsav, which is the biggest award function for meritorious students in
4 North Bengal districts. In fact, we will be having a similar program. Of course, we may not have the flame there, but we will be having arms display, equipment display, the general coming and talking to us, and a host of other activities. So that is already on the anvil. It's over to Major Gaurav Lohomi, who is part of the 31 FAD of the Indian Army, and to take us to the next part of the program. है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं कैप्टन गौरव लोहोमी आप सभी लोगों का ऐसे ही एक ऐतिहासिक समारोह में स्वागत करता हूं। और ऐसा ही एक ऐतिहासिक युद्ध था हमारा 1971 का भारत पाक युद्ध। 3 दिसंबर 1971 को जब पाक सेना ने एयरबेस पर हमला बोला, तब वह उसके अंजाम से वाकिफ नहीं थे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की अगुवाई में भारतीय सेना ने हर छोर पर पाकिस्तानी सेना का डटकर मुकाबला किया और 16 दिसंबर 1971 को उनको मजबूर कर दिया उनकी हार मानने पे। यही 16 दिसंबर का दिन अब हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष कुछ खास है। 2021 का यह सन उस लड़ाई का गोल्डन जुबली ईयर है। उस लड़ाई को 2021 में 50 साल पूरे हो गए हैं। 1971 की जो लड़ाई थी उसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। आपको एक मूवी जो कि आर्मी द्वारा बनाई गई है ताकि आप लोग जान पाएं कि 71 की लड़ाई में किस तरह से इंडियन आर्मी ने यह जीत हासिल करी और किस तरह से अपना साहस और शौर्य और बलिदान का एक एग्जाम्पल क्रिएट किया पूरी दुनिया के आगे। अब मैं जो हमारे बीच मौजूद विजय मशाल है, इसके बारे में चंद शब्द बोलने के लिए मेजर संजीव सिंह को मंच पर आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू गौरव। Before I begin with my speech, I would like to convey that since we are visiting various parts of the country, meeting various veterans who took part in this epic war, the speech has been prepared in Hindi, so that it is easier for every one of us whom we are meeting during this journey of ours, is it easy for them to understand. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद। मैं मेजर संजीव सिंह 17 कोर स्वर्णिम विजय मशाल टीम का कैप्टन आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप सभी के सामने विजय मशाल के साथ मेरे इस यात्रा के अनुभव को साझा करने आया हूं। विजय मशाल से जुड़ी मेरी इस यात्रा की शुरुआत 1 मार्च को हुई, जब मैं अपनी टीम के साथ इसका प्रभार लेने रांची पहुंचा। मशाल का आगमन रांची में 2 मार्च को हुआ, जहां एक शांत समारोह में सेंट्रल कमांड की टीम द्वारा इसे क्वार्टर गार्ड में उचित सम्मान के साथ विश्राम कराया गया। अगले दिन की सुबह एक कौतूहल के साथ हुई। आज ही का दिन था जब यह विजय मशाल 17 कोर का औपचारिक हिस्सा बनने जा रही थी और हमारे प्रभार में आने जा रही थी।
सुबह ठीक 9 बजे झारखंड युद्ध स्मारक के मुख्य द्वार पर सेंट्रल कमांड की टीम ने इस मशाल को औपचारिक रूप से GOC 23 इन्फेंट्री डिप को सौंपा और उन्होंने मुझे मशाल को हाथ में ले मैंने युद्ध स्मारक की तरफ भारत माता की जय के उद्घोष के मध्योपरांत विजय दौड़ लगाई और वहां पर बने मंच पर इसे स्थापित किया, जहां पर हमारे युद्ध दिग्गजों ने इसे श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात मैं और मेरी टीम गाड़ियों के काफिले में शहर के बीचों बीच होते हुए राजभवन की तरफ बढ़ चले। राह में चलते हुए लोगों को जब अनायास ही रुककर भारत माता की जय पुकारते हुए सुना तो चेहरे पर एक मुस्कान और सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राज्यपाल श्री द्रौपदी मुर्मू ने लांस नायक एल्बर्ट इक्का परम वीर चक्र मरणोपरांत के पुत्र श्री विंसेंट इक्का जी को सम्मानित किया। तत्पश्चात अलग अलग दिन और अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे कि पानागढ़ मिलिट्री स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन पानागढ़, एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा, IIT खड़गपुर, एयरफोर्स स्टेशन सलवा, कोलकाता RCTC ग्राउंड और नेताजी भवन जैसी अलग अलग जगहों पर जाकर ये मशाल उन शहीदों और उस युद्ध का हिस्सा रहे दिग्गजों के अदम्य साहस और वीरता की याद दिलाती गई, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज तो है, मगर तीव्र रफ्तार से चलती इस जिंदगी में शायद कहीं धुंधली सी पड़ गई थी। और इस महान मुहिम का हिस्सा बनकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह जीवंत अग्निशिखा जो दब दब कर जल रही है, इसके स्पर्श मात्र से मेरा स्वरांग सिहर गया। 1971 युद्ध के वह क्षण जिन्हें सिर्फ किताबों में पढ़ा या चल छायाचित्रों में देखा, वो आंखों के सामने सजीव हो उठा। युद्ध के दारुण विभत्सिका जीवन उत्सर्ग करते मेरे साथी अंतःकरण को झकझोर गए। उद्धव गांधी विजय मशाल की यह ज्योति अपनी ऐतिहासिक जीत और अपने साथियों के अदम्य साहस का प्रतीक है। मुझे अपने स्कूल के समय से ही मेरे सहपाठी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का हमेशा ख्याल रहता था कि कौन होते हैं वो लोग जो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, किस मिट्टी से बनते हैं वो लोग जो बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जब मैंने पहली बार इस मशाल को स्पर्श किया और युद्ध स्मारक की तरफ विजय दौड़ लगाई तो पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार हुआ और शायद उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। जब पूरा देश आपकी तरफ उम्मीद की टुकटुकी बांधे आशा भरी निगाहों से देख रहा हो तो एक जान क्या हजारों जाने ऐसे भारतवर्ष पर बारंबार कुर्बान है। जय हिंद, जय भारत। So, as we have discussed earlier, now I'll be showing you a small clip of 1971. It's a half-an-hour movie made by Indian Army, so that everyone can be aware about the war, the nitty-gritties involved in the war, and the sacrifice given by our soldiers for a war. So, I would request the IT team to please play the movie. This flame will not be a problem. No, no. Can everyone see the flame? Is it a hindrance? No hindrance. मैं प्रसिद्ध हुगली नदी के तट स्थल पर आज से 240 वर्ष पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का कीर्ति स्तंभ बनकर खड़ा हुआ। मैं फोर्ट विलियम हूँ। मैंने अनेक संघर्ष, युद्ध और इतिहास को बनते देखा है। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे अद्भुत वास्तुशिल्प चमत्कार, कलकत्ता का अद्वितीय दुर्ग और राजयुग के अपार सैन्य शक्ति का प्रतीक हूँ। कई युद्धों का साक्षी रहा हूँ मैं, परंतु एक खास युद्ध जहाँ नियोजन और कार्य पूर्णतः सटीक, संपूर्ण, सशक्त था, वह था 1971 का युद्ध, जिसका एकमात्र मकसद था पूर्वी पाकिस्तान की आवाम को आजादी दिलाना।
बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के संयुक्त प्रदर्शन का सर्वोत्तम उदाहरण था। यह शुरू हुआ 1947 में, जब हमारे देश को दो भागों में विभाजन का दर्द सहना पड़ा। एक तरफ भारत, जो कि लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील गणराज्य बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक अलग दिशा में चल रहा था। पाकिस्तान खुद ही भारतीय क्षेत्र को बीच में रखते हुए हजारों मील दूर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में बसे बंगाली अवाम ने बहुत जल्द यह महसूस किया कि उनके स्वराज का अधिकार छीनकर उनके ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान की बर्बर सेना कठोरता से शासन कर रही थी। पाकिस्तान में बंगालियों की 56% आबादी होने के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान के केंद्रीय सरकार ने जबरन उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित कर रखा था। 1948 में धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने संसद में यह बात उठाई कि देश में रह रहे कुल 6 करोड़ 90 लाख की आबादी में से 4 करोड़ 40 लाख वासिंदे बांग्ला बोलते हैं, तो आधिकारिक भाषा क्या होनी चाहिए। इस पर लियाकत अली ने जवाब दिया कि यह मांग सीधी नहीं है जैसी दिख रही है। दरअसल इसका उद्देश्य लोगों में फूट और वैमनस्य पैदा करना है, और जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तान की अपनी अकेली यात्रा के दौरान यह पूरी तरह से साफ कर दिया था कि वे ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। जिन्ना ने यह भी कहा कि उर्दू और सिर्फ उर्दू ही इस्लामिक राष्ट्र की रूह बनने की काबिलियत रखती है, और यही सिर्फ आधिकारिक भाषा रहेगी, और जो लोग इस बात का विरोध करेंगे उन्हें पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया जाएगा। इस बात ने पूर्वी पाकिस्तान में अव्यवस्था और असंतोष की चिंगारी सुलगा दी। लोगों ने यह मांग रखी कि बंगाली भाषा को भी उर्दू और अंग्रेजी की तरह आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। पर सुनने की बात तो दूर, इस पर कोई विचार विमर्श भी नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे 1948 की भाषा आंदोलन के रूप में जाना गया। सरकार ने किसी भी कीमत पर इसे मानने से इनकार कर दिया, और ब्रिटिश राज में पहले से चली आ रही बंगाली भाषा को मुद्रा और डाक टिकट पर से हटा दिया गया। यह आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर तब पहुंचा जब 21 फरवरी 1952 को पुलिस ने आंदोलनकारी विद्यार्थियों और आम जनता पर गोलियों की बौछार कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 21 फरवरी आज भी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में जाना जाता है। सालों तक आंदोलन, संघर्ष और प्रदर्शन चलते रहे। 12 नवंबर 1970 को पूर्वी पाकिस्तान में फोला साइक्लोन ने भारी तबाही मचाई। यह साइक्लोन अब तक की सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली प्राकृतिक आपदा थी, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अब याह्या खान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अंत में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से दबाव में आने के कारण राष्ट्रपति याह्या खान ने पहले आम चुनाव की घोषणा कर दी। In East Pakistan, Awami League won 167 seats out of 169, whereas in the West, People's Party won 87 seats out of 138. No other party was given double figures. As a result, this election brought two important candidates, Chief
in the east to the west. मुजीबुर रहमान का पाकिस्तान के लोकतांत्रिक चुनाव के बाद बनने वाली सरकार का नेतृत्व करना पूरी तरह से तय था, परंतु भुट्टो और याह्या खान के अलग ही मंसूबे थे। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के खिलाफ एक बर्बर और अमानवीय अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की आवाम को आजादी की लड़ाई में आगे आने को कहा और यह कहा, हमने अभी तक खून दिया है और आगे हम और भी खून देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क के लोगों को आजाद करेंगे। ये वक्त आजादी की लड़ाई का है और इस बार की कोशिश हमें आजादी दिलाएगी। साथ ही इक्का खान ने, जो पूर्वी पाकिस्तान के कसाई के रूप में जाने गए, 26 मार्च को मध्य रात्रि 1 बजे हिंसक कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी आर्मी को अवाम के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आदेश दिया गया और उनके निशाने पर थे पूर्वी पाकिस्तान के विद्यार्थी, शिक्षक और आंदोलनकारी। और तभी शुरू हुई बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई। बहुत जल्द ढाका पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में था। मुजीबुर रहमान को 26 मार्च तड़के बंदी बना लिया गया और हवाई रास्ते से उन्हें कराची ले जाया गया। इस घटना ने पूर्वी पाकिस्तान में पहले से फैलती विद्रोह की ज्वाला को और भी भड़का दिया। हर तरफ खून की नदियां बह रही थी और लाशों का मार लगा था। पाकिस्तानी सेना ने बड़ी ही क्रूरता के साथ 951 शिक्षक, 13 पत्रकार, 49 डॉक्टर, 42 वकील और 16 लेखकों को मौत के घाट उतार दिया। दिल के डॉक्टरों के दिल निकाल लिए, लेखकों की उंगलियां और कलाकारों के हाथ काट दिए, आंखों के डॉक्टर्स की आंखें निकाल ली गई। उनकी क्रूरता के कारनामे बयान नहीं किए जा सकते। इसीलिए 14 दिसंबर बांग्लादेश में बुद्धिजीवियों के शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दौरान 30 लाख निर्दोष नागरिकों की जानें गई और 3 लाख से ज्यादा औरतों का बलात्कार किया गया। कई आंदोलनकारी नेताओं सहित तकरीबन 1 करोड़ बांग्लादेशियों ने भारत के पूर्वी राज्यों में आकर शरण लिया। हमने बांग्लादेशी शरणार्थियों को सुरक्षापूर्ण जगह देने के लिए सीमाओं के दरवाजे खोल दिए। उनकी सहूलियत के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा सरकार ने सीमा के साथ साथ अनेक शरणार्थी कैंप लगाए। भारत में राजनैतिक नेतृत्व को बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ा। यह दुविधा पड़ोसी के ऊपर अत्याचार को चुपचाप देखने या अमानवीय संहार को रोकने के लिए कदम उठाने की थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, परंतु उन्होंने मूक रहने का फैसला किया। वहीं आयरन लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने मानवता को बचाने के लिए दूसरा और कठिन रास्ता चुना। I don't think we can shut our eyes to the situation in a neighboring state. I think, and I personally think that most of the world believes this, they may not be willing to take our good news, that Pakistan as it existed can never be the same again. 28 अप्रैल 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने थल सेनाध्यक्ष के साथ कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उस समय भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल सैम मानेकशॉ। मिसेस गांधी ने कहा, मैं आपको पूर्वी पाकिस्तान में भेजना चाहती हूँ। जनरल मानेकशॉ ने जवाब दिया, इसका मतलब है युद्ध। मानेकशॉ ने मिसेस गांधी को कहा कि यह उचित कदम नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई की तैयारी के लिए समुचित समय देना
जरूरी है। भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में चीन को देखते हुए अपना पोजीशन अख्तियार किया है। वहीं पर्वतीय डिवीजन को पूर्वी पाकिस्तान के नदियों से भरे इलाके में सैन्य अभियान करने के लिए कुछ प्रशिक्षण की भी जरूरत होगी। इस समय नदियां काफी चौड़ी हैं और बिना पुल के सेना को आगे ले जाना काफी कठिन होगा। साथ ही कुछ ही समय में मानसून के कारण पूर्वी पाकिस्तान में क्रॉस कंट्री मूवमेंट तकरीबन असंभव हो जाएगा। वहीं हिमालय के दर्रों के खुल जाने के कारण चीन से खतरे को इनकार नहीं किया जा सकता। अब प्रधानमंत्री ने सेना अध्यक्ष से पूछा, सेना कब तक तैयार हो जाएगी? जनरल ने जवाब दिया, अगर हमें जवान और उपकरण जिनकी जरूरत है मिल जाते हैं तो सशस्त्र सेनाएं 15 नवंबर 1971 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। उसी समय भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान का विद्रोही बल यानी टाइगर्स ऑफ बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की मदद करनी शुरू कर दी। कर्नल MAJ उस्मानी के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी ईस्ट बंगाल राइफल्स के नियमित ऑफिसर और जवानों पर केंद्रित होकर तैयार किया गया। भारतीय सेना ने 2 डिवीजन साइज फोर्स नियमित और तकरीबन 50,000 अनियमित गुरिल्ला को रिकॉर्ड समय में गठित और प्रशिक्षित किया। मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल की चौकियों की मदद से सैन्य अभियान शुरू किया। गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाते हुए उन्होंने बंदरगाह, पावर प्लांट, उद्योग केंद्र, रेलवे और गोदामों जैसे पश्चिम पाकिस्तान नियंत्रित स्थानों पर घात लगाकर छापामारी कर उन्हें तहस नहस कर दिया गया। भारतीय सेना को पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और लड़ाई में समय के साथ बदलते लोकेशन की पूरी जानकारी नहीं थी। वहां का नक्शा भी 50 साल पुराना था, इसलिए मुक्ति वाहिनी को पाकिस्तानी सैन्य बल की लोकेशन और 50 साल पुराने नक्शे में जरूरी स्थान अंकित करने का कार्यभार सौंपा गया, जिसे मुक्ति वाहिनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुक्ति वाहिनी के नौसेना अंग ने पश्चिमी पाकिस्तानी नौसेना के समुद्री रास्ते से आने वाले रसद, मंगला, चिटगांव, चांदपुर, नारायणगंज में मौजूद जलयान को डुबोकर हमेशा हमेशा के लिए महासागर के हवाले कर दिया और रसद को आगे आने से पूरी तरह से रोक दिया। पाकिस्तानी नौसेना ने अलग हुए बंगाली सेलर और सबमरीनर ने समुद्री रास्ते में माइंस लगाकर पाकिस्तानी नौसेना और व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया। मुक्ति वाहिनी के वायु अंग, जिसे किलो फोर्स कहा जाता था, पाकिस्तानी वायुसेना और पाकिस्तानी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के ऑफिसर और जवानों से बना था। भारतीय वायुसेना द्वारा दी गई कुछ जहाजों की मदद से वे जमीनी लड़ाई में कारगर मदद देने में सफल रहे थे। वहीं पाकिस्तानी भी अपनी तैयारी बढ़ चढ़कर कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान के बचाव में सबसे आगे लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल खान नियाजी थे। भारत के साथ 1965 और बर्मा की लड़ाई का हिस्सा रह चुके थे पाकिस्तानी पूर्वी सैन्य उच्च कमान के प्रमुख। उन्होंने किसी भी कीमत पर पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए उन प्रमुख कस्बों और शहरों को मजबूत किया और उनमें पर्याप्त गोला बारूद और रसद पहुंचाया जिससे वो महीनों तक लड़ सके। इस प्रकार नियाजी ने भारतीय सेना को परास्त करने की अचूक योजना बनाई और भारतीय रणनीतिकारों ने युद्ध की तेज और निर्णायक योजना बनाई, जिसके तहत रक्षात्मक तौर पर मजबूत बड़े शहरों को बाईपास करते हुए पूर्वी सेना का अपने अंतिम सैन्य उद्देश्य ढाका, जो कि पूर्वी पाकिस्तान का भौगोलिक और राजनीतिक केंद्र था, वहां तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारी की गई।
चीनी हस्तक्षेप को विफल करने, पूर्वोत्तर में किसी भी विद्रोह को नियंत्रित करने और इसके अलावा भूटान की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद को तैयार किया गया। मुझे याद है मेरे गलियारों में चलते हुए पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, उन्होंने पूर्वी युद्ध क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा था। उत्तर पश्चिमी सेक्टर में भारत की ओर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर और कूच बिहार जिला शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई में महारत हासिल करने वाले अनुभवी लेफ्टिनेंट जनरल एवल थापन के नेतृत्व में 33 कोर को रंगपुर, राजशाही और भोगरा के क्षेत्र द्वारा सैन्य उद्देश्य पूरा करना था। 1975 में सेनाध्यक्ष बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल किरण रैना के नेतृत्व में 2 कोर को पश्चिमी सेक्टर से जसोर और खुलना के महत्वपूर्ण पाकिस्तानी गैरिसन के बीच से आक्रमण करने का कार्यभार सौंपा गया। चिटागोंग पहाड़ियों से कॉक्स बाजार के तटीय क्षेत्रों और सिलहट और कुमिला के मैदानों तक के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए भारतीय सेना के आक्रमण के मुख्य प्रहार की जिम्मेदारी कोर के तेज तलवार कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के हाथों दिया गया। 101 कम्युनिकेशन जोन को मजबूत कर उत्तरी ओर से जमालपुर और मायमन सिंह के क्षेत्रों से आगे बढ़ने का काम सौंपा गया था। हालांकि यह सब भारत में हो रहा था, लेकिन मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमला कर उनका मनोबल गिरा चुकी थी और उनके लड़ने की इच्छा को क्षीण कर चुकी थी। धैर्य खोते हुए याह्या खान ने पूरे पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी और अपने लोगों से कहा कि वे भारत के साथ युद्ध की तैयारी करें। इजराइल के 6 डे वॉर की सफलता से प्रेरित होकर याह्या खान ने 3 दिसंबर की रात को भारतीय ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश दे दिया। परंतु भारत ने कुशल रणनीति का परिचय देते हुए संयुक्त रूप से जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। भारतीय वायुसेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी हवाई हमलों के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया और युद्ध के पहले सप्ताह के अंत तक भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान के आसमान पर अपना संपूर्ण वर्चस्व हासिल कर लिया। वहीं भारतीय नौसेना ने सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण कराची में पाकिस्तान के पोत और बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचाया। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सीखों को मरणोपरांत महावीर चक्र और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वेस्टर्न थिएटर में 17 पुना हाउस के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह ने अपना रणकौशल दिखाकर परमवीर चक्र पाने का सम्मान पाया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और प्रेसी पंजाब की शूरवीर गाथा अब एक लोकप्रिय कहानी बन चुकी है। इसे सुप्रसिद्ध हिंदी फिल्म बॉर्डर में बखूबी दिखाया गया था। इसी बीच 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में अपने संबोधन के दौरान बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता दे दी। अभूतपूर्व और अकारण सैन्य टकराव की स्थिति बनाते हुए राष्ट्रपति निक्सन ने 13 दिसंबर 1971 को यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में अमेरिका के 7वें बेड़े को हिंद महासागर में उतार दिया। अमेरिका के इस हताश कदम को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत सोवियत मैत्री संधि के गुप्त प्रावधान के तहत फौरन मॉस्को को अनुरोध कर हिंद महासागर में सोवियत संघ के परमाणु हथियारों से लैस त्रोटिला को अमेरिकी युद्धपोत का मुकाबला करने के लिए तैनात कर दिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना युद्ध क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व को प्रदर्शित करती हुई 3 दिशाओं से ढाका पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही थी। इसमें कोर का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का संचालन सबसे अधिक आक्रामक था।
14 गार्ड्स के लांसनायक एल्बर्ट एक्का ने ईस्टर्न थिएटर का अकेला परमवीर चक्र पाने का सम्मान पाया। इस बहादुर सिपाही ने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुसार अखौरा के पास एक रेलवे स्टेशन पर स्थित पाकिस्तानी चौकी पर हमला करते हुए अपने जान की बाजी लगा दी। अभियान के शुरुआती दौर की कड़ी मेहनत के बाद लड़ाई की गति तेजी से आगे बढ़ी। भारतीय सेना के एम्फीबियस PT-76 टैंक ने रिवराइन टेरेन में अद्भुत कारनामे दिखाए। सिलहट नियाजी का आखिरी किला था जिसके गिरते ही ढाका की ओर होने वाले आक्रमण में तेजी आ गई। एक बहुत ही साहसी हेलीबॉल ऑपरेशन में तेजस्वी सगत सिंह ने सिलहट गैरिसन के नजदीक बहादुर गोरखास की एक बटालियन को उतारा। इसके बाद उन्होंने मेघना नदी के उस पार 2 ब्रिगेड से ज्यादा सैनिकों को हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के अधूरी इलाके में उतारा और वे तब आश्चर्यचकित रह गए जब सगत सिंह की हेली सेना ने उन्हें बाईपास कर ढाका की ओर कूच कर दिया। 12 दिसंबर तक भारतीय सेना मेघना नदी, आंसूगंज, दाऊदकंडी, चांदपुर जैसे प्रमुख सैन्य स्थल तक पहुंच चुकी थी और अति महत्वपूर्ण मेघना गंज को भी सुरक्षित कर लिया था। 6 से 12 दिसंबर के बीच 14 हेलीकॉप्टर टास्क फोर्स द्वारा तकरीबन 350 उड़ान भरकर, जिसमें 100 से अधिक उड़ान रात में भरे गए थे, 3 विभिन्न स्थानों पर गोलाबारी किए गए। हल्के तोपखाने, बंदूक से 4000 से अधिक सैनिकों और सैन्य उपकरणों को उतारा गया। मेघना एयरब्रिज ऑपरेशन की सफलता संयुक्त तौर पर लड़ने की क्षमता का अनुकरणीय एवं ऐतिहासिक उदाहरण है। 11 दिसंबर को 2 पैरा बटालियन के बहादुर सैनिकों द्वारा अंगेल में सफलतापूर्वक किए गए पैराड्रॉपिंग ने पश्चिमी पाकिस्तानियों का हौसला तोड़ दिया। यह भारतीय सेना का सबसे बड़ा एयरबॉर्न ऑपरेशन था जिसमें 700 भारतीय पैराट्रूपर्स को पाकिस्तानी सेना के पीछे एयर ड्रॉप किया जा रहा था। जमीन पर उतरते ही भारतीय पैराट्रूपर्स का स्थानीय लोगों द्वारा मुक्ति दिलाने वालों के रूप में स्वागत किया गया। वे उन्हें अपने कंधों पर ले जाने के लिए उतारू थे और तमाम सामान, गोला बारूद आदि ले जाने और दुश्मन के ठिकानों की महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पाकिस्तानियों के लिए हालात को और भी बदतर बनाते हुए BBC ने गलती से इस क्षेत्र में उतारे गए पैराट्रूपर की संख्या को 700 की जगह 5000 बता दिया, जिससे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और भी हताश हो गए। पैराड्रॉप की तस्वीर दुनिया के तमाम प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर चमक रही थी। 15 दिसंबर की शाम तक ढाका पूरी तरह से भारतीय सैनिकों से घिरा हुआ था। दबाव को बढ़ाते हुए सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जनरल मानेकशॉ को 15 दिसंबर को सीज फायर के लिए पाकिस्तानी सैनिकों की दया याचना मिल चुकी थी। सुरक्षा परिषद से भुट्टो के अनौपचारिक वॉकआउट ने भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र के साथ युद्ध विराम करने का महत्वपूर्ण मौका दे दिया। I will not be a party to it. We will fight. We will go back and fight. That can't be the Harkins for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. 16 दिसंबर को सुबह 9:15 पर सैम मानेकशॉ ने मुख्यालय पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल JFR जैकब को फोन कर कहा, जैक जाओ और सरेंडर करवाओ। जनरल जैकब ने ढाका की यात्रा की। वह अपने साथ आत्मसमर्पण के साधन का प्रारूप लेकर गए थे। जैकब जानते थे कि नियाजी युद्ध विराम की उम्मीद कर रहा है और आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, परंतु जब आत्मसमर्पण का साधन पढ़कर सुनाया गया तो नियाजी ने अश्रुपूर्ण होकर कहा, किसने कहा कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं?
आप केवल मेरे द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम और वापसी पर चर्चा करने आए हैं। जैकब ने नियाजी को एक तरफ ले जाकर समझाया कि वह उनके सैनिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। जनरल जैकब ने नियाजी को फैसला करने के लिए 30 मिनट का समय दिया। वह यह कहते हुए बाहर चले गए कि समय सीमा समाप्त होने पर वे युद्ध की दोबारा बहाली और ढाका पर तुरंत बमबारी का आदेश दे देंगे। जैसे ही जनरल जैकब गलियारी में प्रतीक्षा करने गए, नियाजी ने सोचा कि भारतीयों ने ढाका को घेर लिया है, जबकि वास्तव में उस समय नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे और भारतीय सैनिकों की संख्या 3,000 से ज्यादा नहीं थी, वह भी लगभग 30 मील की दूरी पर। 30 मिनट के बाद जब जैकब दोबारा ऑफिस में दाखिल हुए तो सन्नाटा छाया हुआ था। जैकब ने नियाजी से पूछा कि क्या उसने आत्मसमर्पण के दस्तावेज को स्वीकार कर लिया है, जिस पर नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैकब ने यही प्रश्न 3 बार पूछा। नियाजी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तब जैकब ने दस्तावेज को उठाया और कहा, मैं इसे स्वीकृति समझता हूं। इस प्रकार एक युद्ध विराम को बड़ी ही आसानी से आत्मसमर्पण में बदल दिया गया और अगले 4 घंटों के दौरान इस पर दुश्मन सेना के मौजूदा कमांडर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह भारतीय सैनिकों की ओर से एक शानदार कदम था। शाम 4 बजे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने ढाका के रमना रेस कोर्स मैदान में बांग्लादेश इंडिया एलाइड फोर्सेस के संयुक्त कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। संयोग से यह ढाका का वही मैदान था जहां 1948 में जिन्ना ने उर्दू को आधिकारिक भाषा थोपकर अपने हाथों भाषा आंदोलन के बीज बोए थे। 93,000 से अधिक पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों ने, जिनके पास 6 महीने लड़ने के लिए पर्याप्त गोला बारूद मौजूद था, बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण किसी भी युद्ध में लिए गए युद्ध के कैदियों की सबसे अधिक संख्या में से एक थी। 17 दिसंबर को जैसे ही भारतीय सैनिकों ने ढाका में प्रवेश किया, खुशी में झूमती वहां की जनता की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। भारतीय सेना के वाहनों को माला पहनाया गया। विजयी सैनिकों को गले लगाने के लिए नागरिकों की भीड़ उतारू हो रही थी। लोगों में गजब का जोश था और नारों से पूरा माहौल गूंज रहा था। हर भारतीय अपने भाइयों की जीत के जश्न में शामिल हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानियों ने जनवरी 1972 में रिहा किया। ढाका पहुंचने से पहले वे दिल्ली में रुके, जहां भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे भारतीय मंत्रिमंडल और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने उनकी आगवानी की। दिल्ली को किसी उत्सव की तरह सजाया गया। शेख मुजीबुर रहमान और श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक भारी भीड़ को संबोधित किया, जहां शेख मुजीबुर रहमान ने सार्वजनिक रूप से इंदिरा गांधी के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाई और कहा, भारत के लोग ही मेरे देश के लोगों के सच्चे मित्र हैं। और इस तरह मित्रों, एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। बांग्लादेश अब एक वास्तविकता थी। भारत, भूटान और म्यांमार ने सबसे पहले बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया। अमेरिका और सोवियत संघ सहित ज्यादातर पश्चिमी देशों ने 1972 में और पाकिस्तान एवं चीन ने 1975 में बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हुए उनसे राजनयिक संबंध स्थापित की। 1971 के युद्ध में भारत की जीत ने साबित कर दिया कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का अगर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह राष्ट्रीय नीति को और भी प्रभावी बनाने और निखारने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर सकती है। इस ऑपरेशन में बहादुर भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। बंदेल में सबसे बड़े एयरड्रॉप, कॉक्स बाजार में समुद्री रास्ते से पहला एम्फीबियस असॉल्ट, अदम्य साहस से परिपूर्ण
गोरखा ब्रिगेड का बड़े पैमाने पर पहली बार हेलीड्रॉप, पद्मा नदी पर पहला हेली ब्रिज और पूर्वी क्षेत्र के आसमान पर संपूर्ण हवाई वर्चस्व। 1971 की लड़ाई में भारत ने युद्ध के इतिहास में किसी भी एक युद्ध में सबसे अधिक संख्या में युद्धबंदी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। यह शानदार जीत भारतीय धरती के 2307 बहादुर बेटों के सर्वोच्च बलिदान से ही संभव हो पाई है। इसके अलावा युद्ध की समाप्ति होने तक 6163 सैनिक घायल हुए और कई कार्रवाई में लापता हुए। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि 1971 की लड़ाई के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अनुशासन का उच्च दर्जा हासिल किया। युद्ध की पूरी अवधि के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा नरसंहार, नागरिक हत्याओं या बलात्कार का एक भी मामला नहीं था। जब आप मेरे चारों ओर विशिष्ट इमारतों की प्रशंसा करते हैं तो कोशिश करें उस बंगले का भी पता लगाएं जहां जनरल नियाजी को युद्धबंदी के दौरान जबलपुर ले जाने से पहले प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में रखा गया। आप में से कुछ जिज्ञासु लोगों को जनरल नियाजी की मर्सिडीज की चुपके से झलक भी मिल सकती है, जो आज भी आर्मी कमांडर पूर्वी कमान के गैरेज में मौजूद है। यह विंटेज कार अभी भी विशेष अवसरों पर पूर्वी सेना के कमांडर द्वारा उपयोग किया जाता है। यह भारतीय अभियान कई कारणों से विशेष और उल्लेखनीय रहा है, जहां भारत सरकार के विभिन्न विभागों, सशस्त्र बलों के सभी अंगों, BSF, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे और रॉ ने संयुक्त रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हुए काम किया और सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और बताया कि सिर्फ 13 दिनों में क्या क्या हासिल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक आवाम की लड़ाई थी और यह जीत बांग्लादेश के महत्वपूर्ण लोगों से मिले अपार समर्थन के कारण ही एक वास्तविकता बन पाई। आज इतिहास के पन्नों पर भविष्य का फूल खिला है। बांग्लादेश की पहली किरण सूर्योदय की प्रहरी से आ मिला है। इतिहास के पन्नों में हम एक साथ चले, युद्ध के माहौल में हम साथ साथ पले, आगे भी साथ साथ जाएंगे। दोनों मिलकर आपसी सद्भाव सम्मान हम बढ़ाएंगे, मैत्री का एक नया कीर्तिमान बनाएंगे, एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। जय बांग्ला, जय हिंद। The Indian Armed Forces offer you such challenges in life that you wouldn't even imagine of in any other profession. Possibly the noblest profession that you can join, to give up all that you have for the cause of your motherland and its people. Before I take you through the rest of the program out here in this conference hall, there's one little bit which is left. I would want to remind you of this very, very important set of words of our first soldier in our last war of independence, Netaji Subhash Chandra Bose. And all these words are so aptly portrayed in each and every frame that you saw in this movie. Netaji had famously written, "Men, money and material cannot alone ensure victory or freedom. We must have the motive power that will inspire us to brave deeds and heroic exploits. Forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law, you must give in order to get." And that is what these brave Indians and the Mukti Yoddhas did. They gave and they got. They got a place that they could call their own, Bangladesh. And India acted as the foremost catalyst in this historic war, the Indo-Pakistan War of 1971. After this, we shall watch our presentation, our performance
by our own students, the future of the country. I'm told that the nursing students of this university and the students of the college next door, the Techno India International College, Newtown, they will have a brief performance, after which you are all requested to go down and watch the band display by the brilliant members of the Assam Regimental Centre Band. In fact, we have not spoken about the band. It's a very, very famous band. They have received several battle honours right before the times of independence. And of course, Captain Prabhakar is here. He is in charge of the military bands. So once you see this, this is the course of the next part of the program. You see the concert, after which the registrar of the university will propose a little bit of vote of thanks, and you will please go down in an orderly manner downstairs to the field where we will have the brief brand concert. The flame will be carried there, which it has already been carried, and after which we shall disperse. Okay? So, it's the concert by the students of the university. চিরদিন তোমার আকাশ
वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन
সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি এমন দেশে কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি Beautiful rendering by the students of the nursing faculty and of course the students of the engineering college next door, the Techno International New Town. We have come to the close of the events in this hall. We will go down to hear the Assam Regimental Centre play for us. And at this point in time, I request Registrar, Professor Shumon Chatterjee, to propose a formal, brief vote of thanks, which I shall request all of you to carry with applause. Thank you, Mr. Ganguly. My sincere thanks to the Honorable Chair, the Chancellor of Sister Nivedita University and Managing Director of Techno India Group, Shishottam Rai Chaudhary. Sincere thanks to my Vice Chancellor, Professor Dr. Dhrubajyoti Chakrabarty. My thanks goes to the entire Eastern Command, who so nicely partnered with us today to show up this excellent event. From all the armed forces, Army, Navy and Air Force. And especially I would like to extend my thanks to Colonel Logan, Colonel Tushar, Major Sanjeev and Captain Gaurav, who had been working with us to make this event a real success. My sincere thanks to all my colleagues from Sister Nivedita University and group colleges and schools of Techno India Group. Sincere thanks to my dear students who have come today to witness this event. Thanks to the press and media who had come today to cover this event. And thanks also to the support staff, without whose effort we couldn't have made this a huge success. With this, thank you all, and I wish that we go downstairs to see the band performance, which is the last performance of the day, to end this program. I will request the students and the faculty members, of course, to go a little bit late, maybe with a gap of a minute or minute 2 or 3, because we want the guests and the chancellor to move downstairs first,
and then after that maybe those who are sitting at the back. Thank you so much. দাঁড়ান এক মিনিট আমি ফ্রেম নিয়ে নিয়েছি ট্রাইপডে। বলে দিচ্ছি, আমি এক্ষুনি বলে দিই, আপনি ডেকে নিন। আমি বলে দিচ্ছি, আমি অন্যদেরকে দেখলেই বলে দিচ্ছি, আর এই কমিউনিটি কাউকে ডেকে নিন দিদি, ডেকে নিন। এটা মোর ইম্পর্টেন্ট, এটা মোর ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ बैटरी तेरे पास है क्या? करना स्टार्ट कर देना। हाँ वो देंगे इसको पूछो कवर कहाँ है, निकाल के रखना था।
যে শেষ হয়েছে করি তুমি সামনে দিয়ে যাচ্ছ
Mashal can be placed over here. Everyone can have a tea party. And then at the last, after the tea party, Mashal can. It can go. Yes, yes. It is there. It's there. Wherever. Only so someone will take care. What? Tea party जनरल को फिर. हाँ हाँ सब पूरा दिया. Don't worry. नहीं ये मेरे को पार्टी नहीं बताना. हाँ हाँ जो program details. A couple of days after we are going to have another meeting. Sir, this is sir. In the Sir, officer को याद से रिटर्न definitely. Sir, sir. Officer को याद से आप लोग क्या विनय नव्हता तरी. स्वागत है एंट्री में. आप लोग भी यहीं पे. Or what you do is band कहाँ गया? তুই টিপাটি ফাটি তোলার দরকার নেই. স্যার এটা আমার কাছে রইল স্যার আমার কাছে नमस्ते सर को फोन करके पूछ क्या करना है. नमस्ते सर. हमारे सारे मिला के 200 मिला के 2 ये लोग 50 होंगे, हम लोग 60 है. पीछे हम लोग 65 हाँ क्या बोलते हैं दिखता सुन গেলাম. হ্যাঁ সবাই আসবে একটু ক্যামেরার দিকে. হয়ে গেছে চলো. তো পাটকে নিয়েছি জীবন
এই ঝুটি কী হবে ঝুটি যে গেছে গেছে মেরেছে হয়ে গেছে আমাদের লাইফ হয়ে গেছে শেষ যাও। এই তুমি চলে যাচ্ছ। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরাটা দেখুন খালি তাহলে হবে থাকুন না তুমি চলো তুমি চলো। এইবার ফুল সেটটাকে দুটোকে আলাদা আলাদা নিয়ে নাও কোনা করে। দুটো আলাদাকে নিয়েছি নিয়ে এই নিলাম যা হোক ভিডিও সব কমপ্লিট।